Welcome students, we are going to discuss a very important topic today, that is carbon. Students, when we write the word carbon, one thing which comes to my brain is this is a very important element which we had discussed in the earlier topics. Now what do we need to understand in this particular specific topic is what are the bonds which are formed by carbon. If carbon is going to form those bonds, then what are the reasons for the formation of those bonds? The bond which will come to the discussion point today will be the covalent bond. Then we are going to discuss some important properties why it exhibits such a big number of compounds in the world. That means there are many compounds which are having a unique word with them, that is known as organic. So when I write organic, it means something which is getting derived by the organisms, rather the world in which we are staying. We all are organic. That means we have something known as carbon in our body. So we're going to discuss about that too. So the word comes organic chemistry. So we're going to discuss in detail certain important concepts which we need to understand this topic in detail when we are going to study even furthermore, that is the coming academic years. When I say organic chemistry, the first thing which I need to know is the IUPAC. The IUPAC means a coded word for a very important organization which gives me the naming of a substance. We are going to discuss in detail about this later on. The second point is we are going to discuss about the kinds of compounds possible, that is the types of carbon compounds. This is going to discuss about the saturation and the unsaturation in this particular topic. The third will be their families. So families is a very regular name, but the actual term used over here will be the homologous series. So homologous series, that means a family is existing, and if the family is going to exist, then there will be something known as a uniqueness of the family, which is known as the functional group. So students, today we are going to focus about these all major topics of carbon. So let us start discussing them one by one. The first point over here is the bonds and the reasons. So when I talk of carbon, let us go to its location. Where is it exactly located? When I say carbon, so its atomic number, which we denote as Z, the atomic number of carbon is 6. Its electronic configuration is 2, 4. That means there are 2 electrons in the first shell and there are 4 electrons in the second shell. So if I need to draw carbon, I will draw carbon somewhat like this: the nucleus, the first shell and the second shell, or the first orbit and the second orbit. So I am writing over here the electrons: the first electron, second electron, third, fourth, fifth and your sixth electron. What have we drawn over here is the carbon atom. When I draw this atom, I need to understand that this particular atom is having its valence electrons. That means electrons in its valence shell. So let us count number of electrons in its valence shell. It is 4. When I come to the point, I get the answer of valence electrons as 4 electrons. Now there is one unique point I need to understand. If I want to understand bonding, then we have just studied something known as the ionic bond. What is the main feature of ionic bond? If I want to discuss ionic bond, then there are 2 conditions possible for a ionic bond.
if it is forming an ionic bond. Now, one, it can either gain 4 electrons, so it is already having 4 electrons. If it gains 4 electrons, the answer becomes as 8 electrons. Or it can donate 4 electrons, or it can lose 4 electrons. So again, if he loses 4 electrons, the number of electrons will become 0. So this is your net will be 8 electrons and net will be 0 electron. These are the two possibilities which are possible if it has to form, my English is very important, if it has to form a ionic bond. Let us come to this particular section and discuss this first. So, अगर इसे 4 electrons gain करने हैं, if he has to gain 4 electrons, then what is going to happen? First of all, carbon is placed where? Hence the location is also very important in the periodic table. So if I draw a simple periodic table over here, so this is hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron and carbon. So this is my location of the element carbon. So now you can see where is it exactly located. अगर हम वहाँ पे देखें तो जो horizontal part होता है, the horizontal is known as what? The rows, and the vertical is known as the groups or the columns. The horizontal part which is the rows and the periods, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका है second period पे, और ये है 1, 2, ये हो गए आपके 2 ग्रुप्स, ये हो गए आपके 10 ग्रुप्स, so 2 and 10 becomes 12, this becomes the 13th group and this becomes the 14th group. So basically carbon का location, the carbon is located in second period and 14th group. So what do we have to conclude from here? We have to conclude from here that its atomic size is very small compared to the other elements in the periodic table. The atomic size of this particular element is quite small. Now, if atomic size is smaller and you are going to add more electrons, अगर हम और इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा. Isn't it? रूम बहुत छोटा है और छोटे से रूम में बहुत से बच्चे बैठ रहे हैं. So what is going to happen? ज़्यादा इधर ऐसा congested feel होगा आपको. The same thing is going to happen with Mr. Carbon because of its smaller atomic size, जो बहुत छोटी atomic size है. The problem over here will be small atomic size के अंदर addition of electron is taking place because of this property. तो ये प्रॉपर्टी बोलती क्या है कि भाई गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स करने, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाला है. इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की वजह से द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है. दैट मीन्स कार्बन के पास 4 बार इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. अगर 4 बार इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो कार्बन बन जाएगा 4 minus. See the way I am writing, students? I am writing it as C4 minus. अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका existence, stability possible नहीं है. Small area के अंदर, small radius के अंदर, small size के अंदर इतने सारे electrons भरने possible नहीं है. And that is the basic reason कि this particular fellow cannot exist. ये possible नहीं है. So ionic bond form करने का first category तो collapse हो गया. The reason over here is वो 4 electrons gain कर रहा था. Electrons gain करते जाएगा तो what is going to happen? उसके electrons add होते जाएंगे, उसका negative charge बढ़ते जाएगा तो वो unstable हो जाएगा. He is highly unstable and hence not possible. Now let us see दूसरा possible है क्या? So पहले ही हमने discuss किया कि उसका atomic size बहुत small है. अभी अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लूज करता हूं, so when I lose an electron, atomic size over here in this case
So I'm drawing this for you so that you will get a much clear picture. ये सादा कार्बन का एटम है, एक स्टैंडर्ड एटम जो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा है उसमें कंडीशन आ रहा है, और कंडीशन ये है कि एटॉमिक साइज इसका थोड़ा और श्रिंक हो जाएगा. कैन यू सी द साइज हैज श्रिंक्ड बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज हो गया. सो दिस फिगर इज टेलिंग यू दैट इट हैज decreased, the atomic size has decreased. Now यहाँ पे हुआ क्या basically? So when a atom loses a electron, उसके ऊपर protons का चार्ज बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं उसका the positive charge, the nuclear charge increases, और वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा. अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचेगा तो एटॉमिक साइज और छोटा हो जाएगा. अभी इसको ऐसे ही करते जाना है एंड ग्रेजुअली ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा बिकॉज ये क्या कर रहा है, एक एक करके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है. दैट मीन्स फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप के बाद वाला रिजल्ट है. इफ सच थिंग इज गोइंग टू फॉर्म, देन व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म ओवर हियर इज, हियर इट विल बी C4+. कैन यू सी हियर इट वाज C4- एंड हियर इट इज C4+. तो दोनों में प्रॉब्लम क्या हो गया, दोनों में प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई एलिमेंट पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है देन दैट पॉजिटिविटी इज आल्सो गोइंग टू अफेक्ट हिज स्टेबिलिटी. तो अगेन ये क्या हो जाएगा, ही विल बी हाईली अनस्टेबल. सो कैन वी कंक्लूड कि यहाँ पे डोनेशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स भी पॉसिबल नहीं है. द डोनेशन इज नॉट पॉसिबल. उसका बेसिक रीजन है दैट एटॉमिक साइज इज डिक्रीजिंग, और एटॉमिक साइज डिक्रीज होते होते इतना छोटा हो जाता है कि वो हाईली अनस्टेबल होता है. इसका मतलब ये दोनों भी पॉसिबल नहीं है. लेकिन कार्बन के तो बहुत सारे कंपाउंड्स है. व्हेन वी आर डिस्कसिंग समथिंग तो हम लोग को एक यूनिक टॉपिक, एंड यू मस्ट हर्ड योर सीनियर्स, योर पेरेंट्स आल्सो टॉकिंग कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है तो इतना अबंडेंस में है, देन व्हाट इज हैपनिंग, how are the bonds formed? So ये ionic bond तो ये form नहीं कर सकता. So let us come to a conclusion of this discussion. तो exactly बनने वाला क्या है? So the bonds formed, the reason over here is a word known as mutual sharing of electrons. To make you understand this, let us assume कि मैं, आप और आपके पेरेंट्स खाना खाने जा रहे हैं, ओके और अगर हम लोग का बिल बनता है, हम लोग 4 लोग जा रहे हैं और हम लोग का बिल बनता है 400 रुपया. अगर बिल बनता है 400 रुपया तो मैं दूंगा 100 रुपया, आप देंगे 100 रुपये और आपके पेरेंट्स भी देंगे 100 रुपया ईच. सो द अमाउंट कम्स टू बी 400. दिस इज नोन एज म्यूचुअल शेयरिंग. The reason I am specifying on this particular word is there are many other bonds possible. There are many other bonds possible. Right now the two major ones are discussed. एक है ionic और एक है the mutual sharing of electrons, which is more commonly known as covalent bond. If you see, the word itself has a meaning hidden over here. The first is the co and the second word is the valent. हमने डिस्कशन बोर्ड पे डिस्कस किया था कि वैलेंट एक ऐसा कोई वर्ड है जो थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करता है, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पे कुछ तो वैलेंस शेल में होने वाली चीजें हैं, समथिंग इन वैलेंस शेल. और ये है को, दैट मीन्स कोऑपरेटिव. इट इज गोना बी अ कोऑपरेटिव सॉर्ट ऑफ शेयरिंग. सो ऐसी कोई भी चीजें जो लास्ट शेल में होंगी या वैलेंस शेल में होंगी और वो कोऑपरेटिव होंगी, दैट मीन्स it will be mutually shared between each other. That particular thing is known as the covalent, और उससे बनने वाला जो bond है, that bond is known as covalent bond. To understand the covalent bond, हमें कुछ और एक step सीखना होगा, by which I can discuss with you healthily certain more points of covalent bond. And that particular structure is known as the Lewis dot cross structures. Okay, the Lewis dot cross structures means point number 1,
आप मेरे साथ ये एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए तो थोड़ा आपको बेटर रहेगा। सबसे पहले हम जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सो द एलिमेंट का सबसे पहले सिंबल लिखना है, एटॉमिक सिंबल जो होता है वो लिखना है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैसे करना है, और यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। सो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक कार्बन, सो हम लोग कार्बन ही एग्जांपल लेते हैं, तो मैं सी लिखूंगा, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में विद रिस्पेक्ट टू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC का मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका आंसर है 2,4 ड्रॉ ओनली द electrons in its valence or outermost shell। सो ये पॉइंट के हिसाब से आंसर कितना आता है, हमने पहले ही डिस्कस किया था, 4 आता है। सो यहाँ पे मैं ड्रॉ देखो कैसे करूंगा, पहले तो मैंने सी निकाला था तो वापस सी निकाल रहा है, और अभी मैं डॉट डालू या फिर क्रॉस डालू, दैट इज अप टू मी डिपेंडिंग अपॉन माई क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने को बताया है कि कैसे ड्रॉ करना है, सिर्फ लेविस स्ट्रक्चर्स एक एलिमेंट का। अभी तो हमने कंपाउंड्स नहीं बनाए। अभी हम एक स्टेप आगे जाते हैं। सो अभी अगर मुझे दूसरा कोई एग्जांपल लेना है और सीखना है कोवैलेंट बॉन्डिंग विद द हेल्प ऑफ लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर्स, सो माय एग्जांपल इज सिंपल n। सो पहले हम n को सॉल्व करते हैं। अगर मैं n को सॉल्व करूं तो n का सिंबल n, एंड उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कितना आंसर आएगा, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, मतलब कार्बन के बाद वाला एलिमेंट है, दैट इज 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2,5, हेंस इसका आंसर ऐसे कुछ तो आएगा। काउंट कीजिए कितने उसमें डॉट्स मारे मैंने, 1 2 3 4 5। विल सॉल्व वन मोर एंड दैट इज ऑक्सीजन। ये बहुत कॉमनली लगने वाले एलिमेंट्स है जो हमको आज लगने वाले हैं। सो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो इसका नंबर है 8 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2,6। विल काउंट दिस, इट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, सो ये आपने O लिखा। O में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, लास्ट शेल में 6 दिख रहे हैं। सो डायरेक्टली वी कैन ड्रॉ 6 डॉट्स। सी द वे आई एम प्लेसिंग देम, ये ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना है। सो प्लीज डोंट लर्न समथिंग लाइक दिस कि कैसे भी O निकाल के ऐसा नहीं करना है। डू नॉट ड्रॉ सच सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स, आपको ऐसे नहीं करना है। सो आई एम इरेजिंग दिस। आपको ऐसे करना है, उसको अच्छे से ड्रॉ करना है, इक्वल शेयरिंग दिखा के ही काम आगे बढ़ाना है। ओके, इतने सफिशिएंट है। नाउ लेट अस डिस्कस, अगर मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो मैं N2 की बात करता हूँ। सो यहाँ पे आपको चेक करना कि कोई डिफरेंस है कि नहीं। सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर हायर स्टडीज इन केमिस्ट्री, आपको ये बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है। वन इज सिंपली एन एटम एंड वन इज सिंपली अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। सो यहाँ पे N2 है, N2 का मीनिंग हो गया देयर आर 2 नाइट्रोजन्स जॉइन टू ईच अदर। जैसे कार्बन के पास अपने प्रॉब्लम्स थे, वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता है, हमने देखा कि वो म्यूचुअल शेयरिंग करता है। म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है वो देखने के लिए हमने लेविस डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर सीखे हैं। और अभी हम कहाँ पे, नाउ वी आर कम टू द पॉइंट जहाँ पे हम एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज अभी हम 2 लोगों के बीच में शेयरिंग देखने वाले हैं। सो हम 2 नाइट्रोजन्स ड्रॉ करते हैं, 1 नाइट्रोजन एंड सेकेंड नाइट्रोजन। वी ऑलरेडी लर्न कि आपको ट्रांसफर या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करके 8 इलेक्ट्रॉन्स जमा करने हैं वैलेंस शेल के अंदर। हमने नाइट्रोजन फर्स्ट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। सो मैं वो ड्रॉ करता हूँ 1 2 और 3 4 5। सिमिलरली यहाँ पे भी ड्रॉ करता हूँ, तो अलग दिखाने के लिए मैं इसको या तो क्रॉस देता हूँ 1 2 3 4 5 सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, 2 नाइट्रोजन्स ड्रॉ किए, तो अभी कोई बॉन्डिंग है दोनों के बीच में? जी नहीं, अभी कोई बॉन्डिंग नहीं दिखाई है। हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। अगेन आई एम ड्रॉइंग अ नाइट्रोजन
And now see the way I'm doing certain things. The one dot over here is shared with one cross of the other nitrogen. Can you see that? मैंने अभी तक बाकी के ड्रॉ नहीं किया बिकॉज अभी इतनी हम लोग को जल्दबाजी नहीं करनी है. ओके, सो ये जो एक चीज बनी है डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे वन डॉट है और वन क्रॉस है, और एक आगे का लेते हैं. सो लेट्स टेक वन मोर, वन डॉट एंड वन क्रॉस, वन डॉट एंड वन क्रॉस. समथिंग इज हैपनिंग सर, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ. यस, द थिंग इज मैंने जो चीज ड्रॉ की है वो है नाइट्रोजन बॉन्डिंग टू नाइट्रोजन. दैट मीन्स इन्होंने ये तीनों इनके जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इन तीन इलेक्ट्रॉन्स के साथ म्यूचुअल शेयरिंग किया. दैट मीन्स नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया. तो कैसे बनाया? सो और एक बार देखते हैं इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. नाइट्रोजन थे एक लाइन. दैट वन लाइन मीन्स दिस. दैट मीन्स ये लाइन के ये साइड पे एक डॉट है और ये साइड पे एक क्रॉस है. अगर ऐसी एक लाइन है तो यहाँ पे कितने लाइन होने चाहिए? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है. सो यहाँ पे तीन लाइन होने चाहिए. इसका मीनिंग हुआ अभी जो मैंने सिर्फ इतना सा पार्ट जो बोर्ड पे ड्रॉ किया है, दिस टेल्स मी कि ये नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है. सो हमने पहले देखा था कि यहाँ पे डॉट्स थे 1 2 3 4 5 6 म्यूचुअल. दैट मीन्स जो वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स है वो ये नाइट्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन्स है. एंड दिस लाइन, दिस डॉट एंड द क्रॉस इज द वे वी कम्युनिकेट टू डिस्कस समथिंग नोन एज अ बॉन्ड. बॉन्ड को डिस्कस करने के लिए, बॉन्ड को बताने के लिए हम लोग ये सब बनाते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लाइन्स हो गए. सो नाउ काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस नाइट्रोजन. हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं, प्लीज पार्टिसिपेट. सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इनके क्रॉस वाले 3 इलेक्ट्रॉन्स. बराबर है? सो काउंट करो कितने हो गए ये नाइट्रोजन के. 1 2 3 नो, 1 2 3 4 5 6. अभी ये नाइट्रोजन के गिनते हैं 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6. तो इसके भी 6, लेकिन सर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. यस, वी आर हैविंग दोज इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर. ये रहे यहाँ पे. नाउ ऐड दिस 2. तो क्या सर ये दो भी ऐड करने? नहीं. जो आपने ये आमने सामने बनाए हुए इलेक्ट्रॉन्स है, जो आपने ये बॉन्ड में डाले हुए इलेक्ट्रॉन्स है, उन्हीं को आपको म्यूचुअल शेयरिंग में कंसीडर करना है, बाकियों को कंसीडर नहीं करना है. सो 6 प्लस दिस 2 becomes 8. 6. Well, now let us move ahead and try to understand with few more examples the concept of covalent bonding. तो अभी हम लोग concept of covalent bond, जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बातें करेंगे. ओके, तो इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट आई फील इज वी शुड नो. ये आपका कंपाउंड, हम लोग कंपाउंड्स लेके, एग्जांपल्स लेके इसको अंडरस्टैंड करेंगे, विच आर वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू. हम लोग उस कंपाउंड्स के लुईस या फिर लेविस डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, एंड उसके साथ साथ हम लोग एक बॉन्ड का लाइन स्ट्रक्चर विच इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रक्चरल पैटर्न या फिर स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ द कंपाउंड भी बनाएंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द कंपाउंड्स. सो हम फर्स्ट कंपाउंड लेते हैं, थोड़ा इजी लेते हैं. हमने पहले N2 लिया था. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मिस्टर O2. अगर हम O2 की बात करें तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? 2 O को ड्रॉ करेंगे, O1 एंड O2. सिमिलरली यहाँ पर भी 2 O बनाएंगे, O एंड डी O.
ओके, सो क्या स्टेप था? सबसे पहले एलिमेंट को लिखना है, सिंबल को लिखना है, एंड देन वी आर सपोज टू डू इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ड्राइंग. सो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का ड्राइंग करेंगे तो O का मैं इधर बनाता हूँ आपके, तो और इजी पड़ेगा. O उसका एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6. hence I will draw 6 electrons, so 1 2 3 4 5 and 6. so these are your 6 electrons of oxygen. अभी इसमें हमको बॉन्डिंग करानी है. नाउ हमको ऐसा बॉन्डिंग कराना है कि बाय विच माय आंसर कम्स टू 8. हर एक एलिमेंट का 8 आंसर आना चाहिए. सो पहले हम इसके 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं. अगर मुझे शेयरिंग करानी है तो 6 तो इधर प्रेजेंट है जो हमने लास्ट टाइम भी गिने थे, तो अभी मुझे और कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. इसका मीनिंग हो गया मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे शेयरिंग दिखानी है, तो उनको थोड़ा मैंने हाईलाइट किया. सो ये हो गए ये O के इलेक्ट्रॉन्स. अभी मुझे इनके इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ करना है, तो क्रॉस में करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5th एंड द 6th वन, द बिगर वंस. नाउ लेट अस डू कि भाई ये लोग का जो बॉन्ड बन रहा है वो है भी या नहीं. तो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 ये दोनों कंप्लीट है. अभी सिर्फ इतना चेक करना कि भाई 8 बन रहा है कि नहीं. तो 8 बन रहा है बिकॉज ये जो हाईलाइटेड है वो लोग क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर हो रहे हैं. सो आप उसको और पास बना सकते हैं, वो डिस्टेंस से कुछ मैटर नहीं करता है. द पॉइंट ओवर हियर इज ये लोग शेयर हो रहे हैं. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो क्रॉस में है वो इनके भी है, और ये जो 2 बड़े डॉट वाले हैं वो इस ऑक्सीजन के भी है. सो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लेट अस काउंट इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ओवर हियर 1 2 3 4 5 6 7 8. सो अभी इसको यहाँ पे ड्रॉ करना है. सो आपको ये लोन पर दिखाने होंगे 1 2 3 और यहाँ पे होगा आपका 2 डैश. तो अब तक एक बात तो क्लियर हो गई है हम लोगों को कि भाई अगर मैं एक डैश बनाता हूँ तो एक डैश में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 डैश बनाता हूँ तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 3 डैश बनाता हूँ तो 2 के हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो ऑक्सीजन की बात हो चुकी है. आई होप द पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर. लेट मी टेल यू, ये जो आपने बनाया है वो है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स बन चुके हैं, और ये दो जो बने हैं दोज इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ये वो वाले हैं, तो उनको भी हमको बनाना होता है. ओके, सो N2 हो गया है, O2 हो गया है. अभी हम थोड़ा और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, दैट इज H2. नाउ आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजीली बिकॉज हाइड्रोजन का जो ये इतिहास है बहुत ईजी है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 है, तो हमको एक ही डॉट देना है. सो यहाँ पे हमको हाइड्रोजन ड्रॉ करना है, ये एक डॉट और ये एक क्रॉस. आई थिंक इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट आंसर. यहाँ पे ऑक्टेट नहीं होगा, यहाँ पे ड्यूप्लेट होगा. सो ये 1 और 2 ये हाइड्रोजन का भी है, ये 1 और 2 ये हाइड्रोजन का भी है. सो इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा ये होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन. प्लीज नोट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अगर आप हायर एकेडमिक स्टडीज करते हैं तो आपको ये दोनों आने चाहिए. जैसे कि आप अभी जानते हैं देयर आर मेनी गुड एग्जाम्स प्लान्ड फॉर यू इन द कमिंग फ्यूचर. उसमें MCQs में आपको ये बहुत काम आता है. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप कभी ना भूले. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर दोज इलेक्ट्रॉन्स. ये वो बातें हैं जो आपको आगे जाके बहुत मदद करेंगी. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स. यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे कुछ तो डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स दिख नहीं रहे. दैट मीन्स ईच आंसर इज डिफरेंट, ईच कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट. यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए थे, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स बचे नहीं है. जो ये इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं इनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. This is what you should know. They are known as your lone pair of electrons. So अपने 2 आंसर्स हो चुके हैं. Now let us move to the next one.